Today I'm going to start a new chapter in partnership. The chapter is reconstitution of partnership. Okay, before this chapter we have completed one chapter, that is the basic of the partnership or fundamentals of the partnership. ठीक है, इसमें प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको पूरा बताया था. अब ये जो चैप्टर है इसमें फर्स्ट मैं आपको थ्योरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं. First of all, meaning of the reconstitution of partnership. Reconstitution means simply change in profit sharing ratio of the partners. Okay, that is known as reconstitution. Reconstitution का जो simple meaning होता है वो होता है नए नियम. ठीक है, तो reconstitution मतलब फिर से किसी चीज को डिसाइड करना. तो यहां पर भी वही चीज है कि whenever there is change in profit sharing ratio of the partners due to any reason, that is known as reconstitution. After the reconstitution, old agreement of the partnership comes to an end and there begins a new agreement of the partners. Okay, अब how causes or conditions for the reconstitution, क्या क्या कारण हो सकते हैं जहां पे reconstitution होता है या फिर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें reconstitution हो सकता है. ठीक है, तो सबसे पहला होता है म्यूचुअल एग्रीमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर टू चेंज देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं, इफ दे डिसाइड देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो शुड बी चेंज्ड, मे बी देयर मे बी एनी रीजन बट दे हैव डिसाइडेड टू चेंज द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो of the existing partner, that may be the reason for the reconstitution of partnership. The second one is admission of a new partner. Whenever a new partner is admitted to the firm due to any reason, ठीक है, so obviously the ratio of all the partners which are existing partner will change due to admission of a new partner. This will become a cause for the reconstitution. Okay, third one is retirement of a partner. Retirement means any partner may leave the firm. After leaving the firm, the ratio of the other partners automatically will change. Okay. Then again, the death of any partner, of any existing partner, may also cause for the reconstitution of the firm. And last one is the amalgamation of two firms. If two firms join their business together, come together, so that cause for the change in the profit sharing ratio of the existing partner because of, suppose करें कि पहले दो अलग अलग फर्म थी जहां पे दो पार्टनर इसमें थे, दो अलग एक और अलग फर्म थी जिसमें दो पार्टनर्स थे, उनका रेशियो इक्वल था 50% और 50-50 इधर था. इफ दे जॉइन द फर्म, ठीक है, तो देयर विल बी 4 पार्टनर्स. ऑब्वियसली अगर वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वही मेंटेन करते हैं जो उनका म्यूचुअल रेशियो था, तो इट विल बिकम 25 एंड 25% ऑफ ईच पार्टनर मींस चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. दीज मे बी द रीजंस फॉर द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप. तो आपको समझ में आया कि जब भी किसी भी कारण से पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज होता है तो वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि उसके चेंज होने के साथ साथ उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस भी काफी वेरिएट हो जाती है. ओके, now I am coming to the next question, that is what adjustment in accounts are made at the time of reconstitution of the firm. तो यहां पर जो मैंने लिखा हुआ है उसी को मैं आपको समझा रहा हूं. सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. Whenever there is change in profit sharing ratio, obviously न्यू रेशियो आ जाएगा, ठीक है, and there would be some loss or gain to partners. Some of the partner will gain, some of the partner will sacrifice because of, क्योंकि अगर आपके पास पहले दो पार्टनर थे, अब तीसरा अगर एंटर होता है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं they will have to sacrifice little bit for the new partner. If there were 4 partner and one of them leave the firm, then his share will be divided among the existing partner. Their share will be more. Okay, so whenever there is change in profit sharing ratio, we have to calculate the new ratio, new profit sharing ratio of all the partners. Who is gaining, his gaining ratio will be calculated. Who is sacrificing, his sacrificing ratio will also be calculated. तो हमें सबसे पहले ratios का calculation करना होता है क्योंकि it will affect their distribution of profits, losses in future as well as distribution of goodwill and so many things. तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
gaining ratio and sacrificing ratio are bound to calculate. Second one is accounting for goodwill. Whenever there is change in profit sharing ratio, goodwill of the firm is valued because of, अगर मान लो कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है या कोई पार्टनर फर्म को छोड़ के जा रहा है, ठीक है, तो अगर कोई पार्टनर फर्म में एडमिट हो रहा है तो जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं उनको नए पार्टनर के फेवर में अपने शेयर को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. ओके, बट अभी तक जो हुआ है वो ये हुआ है कि उन्होंने फर्म को इस स्टेज में लाया है कि वो प्रॉफिट अर्न कर रही है. ठीक है, नया पार्टनर जैसे ही फर्म में एडमिट होता है, ही विल गेट द शेयर इन प्रॉफिट्स बट ही हैज नॉट कंट्रीब्यूटेड फॉर दैट प्रॉफिट. ठीक है, तो जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हैं दे वांट सम कंपनसेशन फ्रॉम द न्यू पार्टनर. लाइक दैट इफ एनी पार्टनर इज लीविंग द फर्म देन ही हैज कंट्रीब्यूटेड in the firm, his contribution in the firm to earn more profit. But आगे क्या होगा, वो फर्म को छोड़ के चला जाएगा और उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स को मिल जाएगा. They will enjoy. His contribution will be enjoyed by the remaining partner. Therefore, he must be compensated by the gaining partners. तो वो जो कंपनसेशन होता है उसी को हम गुडविल के रूप में एडजस्ट करते हैं. तो यहां पर हमें करना होता है अकाउंटिंग फॉर गुडविल के कौन कितनी गुडविल किसको पे करेगा या कौन कितनी गुडविल रिसीव करेगा. ओके, उसके बाद आता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, लॉसेस एंड रिजर्व्स. अभी तक फर्म में जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रिजर्व्स हैं विच हैव नॉट बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स, बट अभी तक जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो उसी के अकॉर्डिंग बढ़ना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपनी फर्म में कॉन्ट्रीब्यूशन किया हुआ है. बट when the profit sharing ratio will change, और अगर उन्होंने उस प्रॉफिट को या उस लॉस को जो अभी तक हो चुका है जिसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया है उसको अगर अभी उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो मे बी कि नए रेशो के कारण किसी पार्टनर को एक्सेसिव लॉस हो सकता है और किसी को एक्सेसिव बेनिफिट मिल सकता है. ठीक है, तो टू रिमूव दिस प्रॉब्लम हम जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होंगे, रिजर्व्स होंगे, उनको रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं ताकि ऐसी कोई प्रॉब्लम जनरेट ना हो. तो इसके लिए हमें अकाउंटिंग करनी होती है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो. उसके बाद हम आते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म. व्हेनेवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म आर ऑल्सो revalued, reassessed, because of क्योंकि जैसे ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा उनका फर्म में सिनेरियो पूरा बदल जाएगा. ठीक है, तो अभी तक के जो भी प्रॉफिट्स या लॉस मे बी ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग, चेंज इन वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो भी होने चाहिए दे मस्ट बी डिवाइडेड अमंग द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. किसी को भी उस चीज का अननेसेसरी एक्सेसिव गेन या लॉस नहीं होना चाहिए. इसलिए फर्म की एसेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यूड करके उसका जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसको ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है. उसके बाद आता है लास्ट एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल. इट इज नॉट कंपल्सरी बट इट मे बी डन. द कैपिटल एडजस्टमेंट शुड बी देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, तो जिसकी एक्सेस कैपिटल है ही कैन विड्रॉ, जिसकी शॉर्ट ऑफ कैपिटल है अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शनेट शेयर इन प्रॉफिट तो वो उतना पैसा फर्म में इंट्रोड्यूस कर सकता है. इट मे बी और मे नॉट बी, ये उनके अपने ऊपर डिपेंड करता है क्योंकि फर्म में हर पार्टनर की जो कैपिटल है वो उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होनी चाहिए. ऐसा कंपल्सन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं है. इट इज सिंपली द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनर कि वो किस तरीके से कैपिटल को मेंटेन करना चाहते हैं. ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट भी आपको करना पड़ सकता है इफ द क्वेश्चन सेज, उनका जो एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको डील करना पड़ता है. ठीक है, ये सारी चीजें आ गई. अब अगली जो चीज है वो मैं आपको बता रहा हूं, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें हम देख रहे हैं मीनिंग ऑफ गुडविल. व्हाट इज गुडविल? ठीक है, तो आई हैव रिटन हियर गुडविल इन जनरल यूजेस गुडविल refers to the reputation of the business. ठीक है, किसी बिजनेस की जो रेपुटेशन होती है, उसका नाम, उसकी पॉपुलैरिटी, जो कि उसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करती है. ठीक है, एज कंपेयर टू अदर्स.
ठीक है, तो इट इज अ कंपैरेटिव स्टडी कि आपके प्रॉफिट अगर दूसरों से ज्यादा है, इट मीन्स आपकी पॉपुलैरिटी बाकी लोगों से ज्यादा है। And if your profits are same as the others are earning, it means you have no extra reputation. आपकी reputation बाकी सबसे अलग नहीं है, इसलिए there is no goodwill. तो simply goodwill is the worth of reputation of the business which enables the firm to earn more profit as compared to others. Okay. As the satisfied customer, अब reputation क्यों बढ़ती है? If you give the full to satisfaction to your customers, they will come again and again. ठीक है, और इसके साथ साथ वो कुछ नए कस्टमर्स को भी आपके साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं बिकॉज दे हैव द सेटिस्फैक्शन। ठीक है, तो एक रेपुटेशन जो आप जनरेट करते हैं ड्यू टू सो मेनी फैक्टर्स, जो आपकी रेपुटेशन बनती है, उसी की वैल्यू को हम बोलते हैं गुडविल, और वो वैल्यूएशन हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, क्योंकि रेपुटेशन जनरेट द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ओके, तो वही जो रेपुटेशन है उसकी मॉनिटरी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट इज कैलकुलेटेड थ्रू द यूज ऑफ और विद द यूज ऑफ प्रॉफिट्स, और एज कंपेयर टू अदर्स, अगर आपके प्रॉफिट बाकी लोगों से ज्यादा होते हैं एज कंपेरेटिव। ठीक है, तो दैट इज द पॉपुलैरिटी ऑफ द फर्म, और उसी को हम मेजर कर रहे हैं मॉनिटरी वैल्यू में। नाउ इज characteristics of the goodwill. What are the characteristics of the goodwill? Goodwill has so many characteristics. First of all, it is an intangible asset. Goodwill को आप देख नहीं पाते हैं, ठीक है? It can be felt. It cannot be touched. आप उसको टच भी नहीं कर सकते हैं, आप उसको देख भी नहीं पाते हैं. Only you can feel it. ठीक है? Just like for examples आपके सामने बहुत सारे हैं कि अगर आप सिटी में जाते हैं, दो शॉप्स हैं जो एक जैसा काम कर रही हैं, एक जैसे प्रोडक्ट बेच रही हैं, बट किसी एक में आपको क्राउड ज्यादा नजर आता है, दूसरे में क्राउड आपको नजर नहीं आता है। तो जिसमें क्राउड नजर आ रहा है, सेम प्राइस वो भी चार्ज कर रहा है, वही प्रोडक्ट है, वही प्राइस है, दूसरा वाला भी वही प्राइस, वही प्रोडक्ट आपको दे रहा है, लेकिन वहां पर आप जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इट मीन्स कुछ तो है जिसके कारण वहां पर भीड़ लगी हुई। ठीक है, तो वो जो भीड़ है वो आपको महसूस करवाती है, वो आपको फील करवाती है कि इट हैज रेपुटेशन मोर एज कंपेयर टू अदर। मतलब ये कि ये आपकी गुडविल का नतीजा है, आपकी पॉपुलैरिटी का रिजल्ट है कि आपको वहां पे क्राउड ज्यादा नजर आता है, मोर कस्टमर्स यू गेट। सेकेंड इज वैल्यू ऑफ गुडविल फ्लक्चुएट्स। गुडविल की जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, नेवर रिमेन कॉन्स्टेंट। इट डिपेंड्स, कभी कम हो जाती है और कभी बढ़ जाती है, और कुछ की ऐसी है कि कंटिन्यूसली बढ़ती चली जाती है। तो गुडविल इज बाउंड, वैल्यू ऑफ द गुडविल इज बाउंड टू फ्लक्चुएट विद द रेपुटेशन ऑफ द कस्टमर बिजनेस। एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज नॉट पॉसिबल because of profits are affected by not only one factor but by many factors, and goodwill is also affected by many factors. इसलिए goodwill का exact valuation आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कौन सा फैक्टर कितना इफेक्ट डालेगा उसके ऊपर nobody knows. After that it is saleable asset. Normally goodwill जो होती है वो आप सेल भी कर सकते हैं, मतलब आप अपने बिजनेस का टाइटल, आपके बिजनेस को एज इट इज किसी को और को सेल आउट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कि आपके पास कुछ ऐसी चीजें हैं, जैसे आपके पास कोई मोनोपोलिस्टिक राइट है, कोई आपका ट्रेडमार्क है जिसके कारण आपकी गुडविल जनरेट हुई है, एंड दैट ट्रेडमार्क अगर आप किसी को और को शिफ्ट कर देते हैं तो वो फायदा उसको मिल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि गुडविल में बी सोल्ड आउट। दैट इज इट इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर्स, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स व्हिच आई हैव रिटन हियर। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करने वाले होते हैं। उसके बाद आते हैं, इट इज नॉट ए डेप्रिसिएबल असेट। गुडविल अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग सिस्टम, गुडविल इज नॉट ए डेप्रिसिएबल असेट बट इट कैन बी रिटन ऑफ इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब जस्ट लाइक अदर फिक्स्ड असेट्स, वी नेवर डेप्रिसिएट गुडविल वन ईयर आफ्टर ईयर, बट इट इज रिटन ऑफ कंप्लीटली एट ए टाइम फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट। ओके, दैट इज हेल्पफुल इन अर्निंग मोर profits. So it is in the definition of the goodwill कि goodwill is that reputation which helps you earning more profit as compared to others
Because of your satisfied customer will come again and again and will increase your turnover. तो गुडविल जो है वो आपकी प्रॉफिट को अर्न करने में आपको हेल्प करती है. नाउ हियर विल सी फैक्टर्स अफेक्टिंग द गुडविल. कौन कौन सी चीजें हैं जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं. ठीक है, देयर आर सो मेनी फैक्टर्स. मैंने कुछ यहां पर नोट डाउन किए हैं. इन एडिशन टू दिस देयर मे बी सम मोर फैक्टर्स ऑल्सो. फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ योर बिजनेस. ठीक है, कुछ लोकेशंस ऐसी रहती हैं जो बहुत ही प्राइम लोकेशंस रहती है, जहां पे रेगुलर कस्टमर आता है, विजिट करता है, और नए नए कस्टमर वहां पे आके विजिट करते हैं. तो ऐसी लोकेशन में अगर आपका बिजनेस होता है तो ऑटोमेटिकली वहां पर आपका बिजनेस जो है वो इंप्रूव होता जाता है, ग्रो करता चला जाता है, एंड दैट क्रिएट्स द गुडविल ऑफ द. देन इज क्वालिटी. जस्ट लाइक हम अगर बात करें तो इंदौर में राजवाड़ा एरिया जो है वो एक ऐसा सेंट्रल लोकेशन है कि वहां पर आउटसाइड से, मतलब आउट ऑफ द सिटी जितने भी लोग आते हैं, एटलीस्ट दे विजिट राजवाड़ा वंस अ टाइम. तो वहां पर जाके उनको बहुत सारी शॉपिंग की चीजें एक साथ मिल जाती हैं, अलग अलग टाइप के बाजार वहां पर अवेलेबल हैं, जिसके कारण वहां पर अगर कोई भी बंदा अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसका फायदा ये होता है कि वहां पर न सिर्फ इंदौर के कस्टमर्स आते हैं बल्कि इंदौर के बाहर के कस्टमर्स भी उस एरिया में आते हैं. तो ऑब्वियसली आपका बिजनेस ज्यादा तेजी से ग्रो कर पाता है क्योंकि आपको नए कस्टमर्स आसानी से मिल जाते हैं. क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. ये आपकी अपनी जो स्ट्रेटेजी होती है कि आप अपने कस्टमर को किस तरह का गुड्स प्रोवाइड करते हैं और क्या प्राइस आप चार्ज करते हैं, वो आपकी रेपुटेशन को बनाने और बिगाड़ने का काम करती है. तो अगर आप बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीजनेबल प्राइस पर अगर आप अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं तो डेफिनेटली वो कस्टमर आपसे न सिर्फ क्वालिटी बल्कि प्राइस में भी सेटिस्फाइड होता है और वो फिर से आपके शॉप पर ही दोबारा शॉपिंग करने के लिए आता है. लेकिन अगर आप उसको एक बार चीट कर देते हैं तो वो दोबारा शायद आपकी दुकान पर कभी नहीं आएगा. तो क्वालिटी प्रोडक्ट and price charged by the businessman from his customer depends or affects his goodwill. That is monopolistic and other rights. ऐसी कोई चीजें जो सिर्फ आपके पास ही हैं, किसी और को उसका राइट नहीं है, तो दैट ऑटोमेटिकली इंक्रीज योर प्रॉफिट्स. क्यों? क्योंकि वो चीज आप और किसी के पास अवेलेबल नहीं है या उस चीज को कोई और नहीं बना सकता है, नहीं बेच सकता है. तो उसका फायदा भी आपके बिजनेस को ही मिलता है और आपकी रेपुटेशन जो है वो बढ़ती है. देन इज एफिशिएंट एंड लॉयल एम्प्लॉयज. अगर आपके बिजनेस में जो एम्प्लॉयज आपने हायर किए हुए हैं, ठीक है, इफ दे आर एफिशिएंट ऑब्वियसली दे विल सेटिस्फाई द कस्टमर्स बिकॉज ऑफ कस्टमर की हर रिक्वायरमेंट को, हर क्वेरी को वो बहुत कामली और बहुत इंटेलिजेंटली सॉल्व करते हैं, जिससे कस्टमर को सेटिस्फेक्शन जल्दी से मिल पाता है और वो उसके साथ में जुड़ जाता है. ठीक है, इसके अलावा आपके एम्प्लॉयज की लॉयल्टी मतलब ईमानदारी के वो वहां पे जो भी काम कर रहे हैं बहुत ही लॉयल्टी के साथ कर रहे हैं. मतलब ये कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम कर रहे हैं ऐसा नहीं, बल्कि उनके दिमाग में ये होना चाहिए, उनके दिल में ये होना चाहिए कि अगर ये बिजनेस है तो हम हैं और अगर बिजनेस नहीं होगा तो हम नहीं होंगे. इसका मतलब ये कि वी हैव टू वर्क फॉर द ग्रोथ ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन, नॉट फॉर ओनली. ठीक है, तो अगर ऐसे लॉयल एम्प्लॉयज आपको मिलेंगे तो वो आपके कस्टमर को कभी भी आपके यहां से खाली नहीं जाने देगी और पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ वो आपके कस्टमर को विदा करेंगे ताकि वो कस्टमर दोबारा आपकी शॉप पर आएगा और आपके यहां से फिर खरीदी करके जाएगा, फिर आपको एक टर्नओवर बढ़ाने में हेल्प करेगा, प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करेगा. मार्केटिंग स्ट्रेटेजी एंड आफ्टर सेल्स सर्विस. आपकी मार्केटिंग का जो तरीका होता है दैट ऑल्सो अफेक्ट्स द कस्टमर्स. अगर बहुत ही अट्रैक्टिव है, बहुत ही चार्मिंग है तो कस्टमर आपके शॉप से, आपके ऑर्गेनाइजेशन से अट्रैक्ट होता है और वो आपके यहां आता है. इसके साथ साथ आप अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट बेचने के बाद जो आफ्टर सेल्स सर्विस प्रोवाइड की जाती है, नॉर्मली ये जो ड्यूरेबल गुड्स होते हैं उसमें ऐसी चीजें होती हैं कि आफ्टर सेल्स सर्विस की जरूरत होती है. अगर आप अपने कस्टमर को आफ्टर सेल्स सर्विस बहुत ही अच्छी प्रोवाइड करते हैं, मतलब जैसे ही कस्टमर आपको कॉल करता है किसी भी प्रॉब्लम के लिए तो इंस्टेंटली आप उसको रिप्लाई करते हैं, उसकी हर समस्या का समाधान उसको देते हैं, तो वो आपसे बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड होता है. ऐसी सिचुएशन में वो हर बार
हर बार जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदेगा वो आपके यहां से ही खरीदेगा, क्योंकि आपके यहां से उसको जो सेटिस्फेक्शन मिला है वो कहीं और नहीं मिला होगा। इसलिए वो आपके साथ परमानेंटली जुड़ेगा और वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में हेल्प करेगा, आपकी गुडविल, आपकी रेपुटेशन को बढ़ाने का काम करेगा। फेवरेबल गवर्नमेंट पॉलिसीज, जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर आपके बिजनेस, जिस चीज का भी आप बिजनेस कर रहे हैं, उसके लिए अगर फेवरेबल होती है, ठीक है, तो उसका फायदा यह मिलता है कि आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो करता है, आपको आसानी से कस्टमर मिलते हैं, आपकी रेपुटेशन इंक्रीज होती है। देन फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। आज की तारीख में ऐसा भी हो गया है कि कस्टमर पहले, अगर हम ओल्डन टाइम में की बात करें तो पहले कस्टमर जब होता था बाजार में बहुत जरूरत होने पर ही सामान खरीदने के लिए, लेकिन आज की तारीख में ऐसा हो गया कि कस्टमर एंटरटेनमेंट के लिए भी बाजार में जाता है, ठीक है, ना सिर्फ शॉपिंग करने के लिए बल्कि वो वहां पर एंटरटेनमेंट करने के लिए भी जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत ज्यादा टाइम नहीं होता है, वीक में एक दिन निकलता है, तो वो चाहता है कि पूरा शॉपिंग भी हो और साथ में उसकी एंटरटेनमेंट भी हो। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप अपने कस्टमर्स को बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, जैसे बहुत अच्छा आपके यहाँ शॉपिंग से डिस्प्ले है, जहां पे बहुत वेल आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेन करते हैं कि वो कस्टमर को किस तरीके से डील करें, इसके साथ में आप कस्टमर को वेलकम ड्रिंक प्रोवाइड करते हैं, उनको प्रॉपर पार्किंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, तो कस्टमर आपके यहाँ आसानी से विजिट कर पाता है और उसको बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ पार्किंग की फैसिलिटी नहीं है, कस्टमर को आपकी शॉप से अगर 1 किलोमीटर दूर पार्किंग करनी होती है, तो वो जल्दी से आपकी दुकान पर आने की कोशिश नहीं करता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो पार्किंग की होती है। उसके बाद जब वो आपकी शॉप में आता भी है तो आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनकी तरफ से कोई स्पेशल फैसिलिटी नहीं है, उनकी तरफ से कोई वेलकम नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो वो आपके यहाँ शॉपिंग शायद करे, लेकिन अगली बार वो सोचेगा कि मैं इस शॉप में जाऊं या ना जाऊं। तो आप कस्टमर को जितनी ज्यादा फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, कस्टमर उतना हैप्पी होता है और वो और 10 लोगों को बताता है कि इस शॉप में जाएंगे या इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा, आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेंगी, जिससे वो और 10 लोगों को आपके साथ जोड़ने का काम करते हैं। देन पर्सनल रेपुटेशन ऑफ द बिजनेसमैन। जो बिजनेसमैन होता है उसकी अपनी पर्सनल रेपुटेशन भी होती है, जिसके कारण भी बिजनेस ग्रो कर सकता है। जैसे हम अगर बात करें कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, उनके बोलने का जो तरीका है वो उनकी एक पर्सनल रेपुटेशन है, जिससे लोग अट्रैक्ट होते हैं। मतलब जो उनके विरोधी हैं वो भी उनके फेवर में बात करने लगते हैं कि इस बंदे का बोलने का तरीका जो है वो बहुत ही अच्छा है, दिल को छूने वाला है। तो एक रेपुटेशन उनकी जो है वो और ग्रो करती जा रही है। जहां उन्होंने बहुत कम सीट्स अवेल की थी इन द फर्स्ट इलेक्शन, लेकिन सेकंड इलेक्शन में उनको बहुत अच्छी सीट मिली और आगे बहुत ज्यादा उम्मीदें बढ़ गई कि लोग उनके साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक होती है पर्सनल रेपुटेशन। इस तरीके से बिजनेसमैन भी जब अपने कस्टमर को डील करता है तो उसका जो कस्टमर के साथ में डील करने का तरीका जो होता है, ठीक है, वो उसकी पर्सनल क्वालिटी होती है, जिसके कारण भी कस्टमर उसके साथ में जुड़ता है। तो उसकी अपना एक नाम, उसकी पॉपुलैरिटी जो होती है पर्सनल, वो भी कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और आपकी गुडविल को एनहेंस करने का काम करती है। मतलब आपकी गुडविल वैल्यू को या आपकी रेपुटेशन को अफेक्ट करने का काम करती है। तो इस तरीके से देयर मे बी मैनी फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग गुडविल, और वो सारे मिलकर जब गुडविल को अफेक्ट करते हैं तो प्रैक्टिकली किसके कारण कितनी गुडविल अफेक्ट हुई ये हम कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। इसीलिए एग्जैक्ट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कभी भी पॉसिबल नहीं होता है। दैट इज ओनली वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट प्रॉफिट्स, लेकिन एग्जैक्टली फ्यूचर में कितने प्रॉफिट्स होंगे इसका असेसमेंट कोई भी करेक्टली नहीं कर सकता है। दैट्स अब इसके बाद मैं आपको जो बताऊंगा अगले वीडियो में वो है मेरे नेचर ऑफ द गुडविल या टाइप्स ऑफ द गुडविल क्या क्या होते हैं, किस किस तरीके से गुडविल को हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट कब कब गुडविल का वैल्यूएशन करना कंपलसरी होता है या किया जाता है एक फर्म में, एक बिजनेस में, और उसके बाद मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ में कुछ अकाउंटिंग के जो मैंने यहां पर आपको पॉइंट्स दिए हैं तो उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से की जाएगी इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। कंटिन्यूइंग द चैप्टर, अब मैं आपको बता रहा हूं
मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, साथ में टाइप्स ऑफ गुडविल के बारे में। तो टाइप्स ऑफ गुडविल में गुडविल कितने तरह की होती है, इसको हम अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नेचर एंड सम डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो पहला जो टाइप ऑफ गुडविल है दिस कैन बी कॉल्ड परमानेंट गुडविल या प्लेस गुडविल या लोकल गुडविल या कैट नेचर गुडविल। ठीक है, इस गुडविल को हमने कैट के नेचर के साथ में कोरिलेट किया है कि कैट का जो नेचर होता है उसके हिसाब से ही गुडविल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं परमानेंट या लोकेशनल गुडविल, अपन इसको बोल सकते हैं। लोकेशनल गुडविल का मतलब होता है ये किसी पर्टिकुलर प्लेस की गुडविल होती है और उस प्लेस पर जो भी बिजनेस करेगा उसका बिजनेस इंप्रूव होता रहेगा, ग्रो करता रहेगा। ठीक है, वहां पे जो ओनर ऑफ द बिजनेस है वो भले ही बदल जाए लेकिन फिर भी उस प्लेस की गुडविल के कारण वहां पर जो भी बिजनेस करेगा, जो भी नया व्यक्ति आएगा, जो भी नया अपना बिजनेस स्टार्ट करेगा उसको उसका फायदा मिलेगा। जैसे अगर अपन इंदौर की बात करें तो इंदौर में राजबाड़ा एरिया जो है, जिससे पहले भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि राजबाड़ा एरिया जो है वो हार्ट ऑफ द सिटी कहलाता है, जहां पर आउटसाइड से कस्टमर आते हैं। आउटसाइड से मतलब इंदौर के बाहर से भी कस्टमर्स आते हैं, इंदौर के लोकल कस्टमर तो वहां पर आते ही आते हैं। और इवन एक इंदौर के किसी भी एरिया में रहने वाला बंदा सबसे पहले जब मार्केट शॉपिंग की बात करता है, उसको बहुत सारी शॉपिंग अलग अलग टाइप की चीजें खरीदनी होती हैं, तो वो सबसे पहले मार्केट में राजबाड़ा आने के बारे में सोचता है, क्योंकि यहाँ पर उसको रीजनेबल प्राइस पर हर तरह का गुड्स, हर तरह की वैरायटी अवेलेबल हो जाती है। ऑफ कोर्स कि इंदौर में बहुत सारी लोकेशन है जहां पे उसको ये सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन जो क्वालिटी प्रोडक्ट है, जो एक रिश्ते चले आ रहे हैं, उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलता है और कस्टमर दूर दूर से यहाँ पर आता है। तो दिस टाइप ऑफ गुडविल जो है वो लोकेशनल गुडविल है। ठीक है, इसको अपन बिल्ली, कैट के नेचर से किस तरीके से जोड़ सकते हैं कि कैट जो बिल्ली होती है, अगर किसी घर में उसको एक बार दूध पीने को मिल जाता है गलती से या किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वो परमानेंटली उस जगह पर आके दूध की तलाश करती रहती है। भले ही उस जगह का मालिक बदल जाए, उस मकान में रहने वाले बंदे बदल जाएं, लोग बदल जाएं, लेकिन फिर भी वो बिल्ली वहां पर आना नहीं छोड़ती है। मतलब ये कि उस जगह के कारण वो बार बार अट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो इसी तरीके से कुछ प्लेसेस ऐसे होते हैं जहां की गुडविल जो होती है वो परमानेंट होती है। अब वो उसकी लोकेशनल जो सिचुएशन है उसके कारण ऐसा हो सकता है कि वो बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन है, ऐसे बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो लोकेशन अपने आप की गुडविल क्रिएट करती है। ठीक है, इस तरह की जो गुडविल होती है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा इसलिए होती है क्योंकि वहां पर कौन आदमी काम कर रहा है, इट इज नॉट मटेरियल, वो जगह के कारण आपको फायदा मिलता है। तो जब भी ऐसी जगह पर आप कोई शॉप लेने की कोशिश करेंगे, खरीदने की कोशिश करेंगे, किराए पर लेंगे, तो आपको बहुत ज्यादा पैसा उसके लिए पे करना पड़ेगा। ठीक है, जो दूसरे टाइप की गुडविल है दैट इज नोन एज पर्सनल गुडविल, या फिर हम इसको डॉग नेचर गुडविल कहते हैं। ये जो गुडविल जनरेट होती है ये आपके पर्सनल एफर्ट्स से जनरेट होती है। आपका जो नेचर है, आपका जो बिहेवियर है अपने कस्टमर के साथ में, आपके साथ में जो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, उनकी जो इफिशियंसी है, उनकी जो लॉयल्टी है, ठीक है, वो आपके बिजनेस की रेपुटेशन को बढ़ाने का काम करती है। और अगर आप उस जगह से कहीं और चले जाते हैं तो बिकॉज ऑफ आपका नेचर आपके साथ मूव करता है। ठीक है, तो आप जहां भी जाएंगे अपने नेचर के हिसाब से हर एक को अपना बनाएंगे। मतलब ये कि हर एक को आप अपने साथ आसानी से जोड़ पाते हैं। तो लाइक दैट कि जैसे एक कुत्ता होता है, डॉग होता है, वो हमेशा अपने मालिक के साथ साथ, एक बार वो जिसके साथ जुड़ जाता है बस वो उसी के साथ साथ चलता है। तो जैसे जो एक डॉग है वो अपने मालिक के साथ साथ घूमता है, अपने ओनर के साथ साथ चलता है, अपने केयरटेकर के साथ साथ हमेशा चलता है, उसी तरीके से ये गुडविल जो है इसको इसीलिए डॉग नेचर गुडविल कहा है कि ये भी अपने जो ओनर होती है, जो मालिक होता है बिजनेस का, या फिर जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके साथ साथ चलती है। ठीक है, और इन जनरल दिस कैन नॉट बी सोल्ड आउट, क्योंकि आप अपनी पर्सनल क्वालिटी किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। तो इन माय ओपिनियन दिस गुडविल कैन नॉट बी सोल्ड आउट, इसको बेचना पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि आप अपनी पर्सनल क्वालिटी को किसी को भी हैंड ओवर नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर आप कहीं जॉब करना चाहते हैं तो इट में कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए बिकॉज ऑफ, क्योंकि आपका नेचर इतना अच्छा है, आपका जो बिहेवियर है, आपकी जो टेक्निक्स हैं वो इतनी शानदार है कि आप कहीं पर भी उस
अपनी टेक्निक से, अपने नेचर से आप अपने एम्प्लॉयर को फायदा दिला सकते हैं। तो वहां पर ये गुडविल का वैल्यूएशन नहीं पॉसिबल हो पाता है। सिर्फ ये कि आपकी सैलरी ज्यादा मिल जाती है, पैकेज आपको ज्यादा मिल सकता है। तो इसको हमने गुडविल को, इस नेचर की गुडविल को डॉग के साथ में इसलिए कंपेयर किया है क्योंकि ये एक डॉग और मास्टर के बीच में जो एक रिलेशनशिप होती है, उसी तरीके से गुडविल और उसके ओनर, इन दोनों की रिलेशनशिप है कि गुडविल विल गो विद हिज ओनर। और इस तरीके से अगर ओनर अपनी जगह छोड़ देता, मतलब ये है कि अगर एक पर्टिकुलर बिजनेस में वो पर्टिकुलर ओनर बदल के दूसरा कोई ओनर आ जाता है तो उसकी वैल्यू ऑफ गुडविल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। बिकॉज ऑफ कि गुडविल वॉज पर्सनलाइज्ड, उस पर्सन के कारण गुडविल थी, बाकी किसी चीज के कारण गुडविल नहीं थी। और अगर पर्सन ने उस जगह को लेफ्ट कर दिया है, छोड़ दिया है, तो उसके साथ साथ उसकी गुडविल भी वहां से चली जाती है। ठीक है। तीसरी जो गुडविल है जिसको हम बोलते हैं कस्टमर कमोडिटाइज्ड गुडविल, या फिर टेम्परेरी गुडविल, या फिर रेट नेचर गुडविल। ये जो गुडविल होती है बहुत स्पेसिफिक टाइप की गुडविल है कि आपके पास कोई स्पेसिफिक राइट है, आपके पास कोई ट्रेडमार्क है, या फिर आप बहुत कम प्राइस पर गुड्स बेच रहे हैं। तो जब तक आप कम प्राइस पर बेचते रहेंगे तब तक आपको उसका फायदा मिलता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप रेट बढ़ाएंगे तो आपको फायदा मिलना बंद हो जाएगा। तो ये एक ऐसी टेम्परेरी गुडविल होती है जिसका आपको फॉर द शॉर्ट टर्म बेनिफिट मिलता है, लॉन्ग टर्म में उसका बेनिफिट आपको मिलना बंद हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको रेट नेचर से कंपेयर करते हैं, क्योंकि इन जनरल ये एक ऑब्जर्वेशन है कि ऑल ऑफ सडन किसी पर्टिकुलर एरिया में अचानक रैट्स की जो संख्या है वो बढ़ जाती है और ऑल ऑफ सडन वो संख्या गायब हो जाती है। मतलब आपको बहुत सारे चूहे दिखाई देंगे और फिर थोड़े टाइम बाद वो सारे के सारे चूहे गायब हो जाते हैं। तो इसी तरीके से ये होता है कि इसमें भी अचानक आपके बिजनेस को बहुत प्रॉफिट होने लगता है, पॉपुलैरिटी बढ़ जाती है और फिर अचानक ही वो सारी की सारी क्या होती है, खत्म हो जाती है। बिकॉज ऑफ क्योंकि और कॉम्पिटिटर्स आपके बढ़ जाते हैं या और भी कई कारण हो सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से ये जो गुडविल होती है इट कैन बी सोल्ड आउट, इट इज सेलेबल, बट इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो ये होती है कि इसकी वैल्यू बहुत ही कम होती है क्योंकि इसमें परमानेंसी नाम की कोई चीज नहीं होती है। तो इस तरीके से हम गुडविल को इन तीन पार्ट में तो बोल ही सकते हैं। इसके अलावा गुडविल को कुछ बुक्स में ऐसा भी दे रखा है कि परचेज्ड गुडविल एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज गुडविल का मतलब होता है कि आपने किसी के रनिंग बिजनेस को परचेज किया है और उसको आपने गुडविल के लिए पेमेंट किया है, तो अब आप उसका फायदा, उसके नाम का फायदा या जो भी कुछ है वो आप उठाना चाहते हैं, तो इट इज कॉल्ड परचेज गुडविल एंड इट इज शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसकी कोई वैल्यू बेसिकली नहीं है अनटिल अनलेस जब तक आप उसको इवेल्युएट नहीं करते हैं, बट उसको आप बुक्स में शो नहीं करते हैं। तो ये जो गुडविल है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये आपके नेचर, आपके बिजनेस की लोकेशन, आपकी क्वालिटीज के ऊपर डिपेंड करती है कि आप अपनी कितनी रेपुटेशन बढ़ा पाते हैं, उसका कितना फायदा ले पाते हैं। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल जो है वो धीरे धीरे करके इंप्रूव होती है, ग्रो करती है, जबकि परचेज गुडविल है वो एक साथ आप परचेज कर पाते हैं और किसी का फायदा उठा सकते हैं। तो इस तरीके से गुडविल को ये भी क्लासिफिकेशन है और एक वो भी क्लासिफिकेशन है, लेकिन एग्जाम में जब आपको लिखना है तो आई थिंक सो कि आपको ये वाले जो तीन टाइप्स हैं ये आपको डिस्क्राइब करने होंगे कि टाइप्स ऑफ गुडविल को आप डिस्क्राइब करेंगे तो आप इस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे। ओके, उसके बाद अब मैं अंडर व्हाट कंडीशंस वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इन पार्टनरशिप इज कंपलसरी। ठीक है, एक पार्टनरशिप में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कब कंपलसरी होता है, तो इसके लिए इससे पहले भी ये चीज डिस्कस हो चुकी है कि वेन एवर देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, रिकॉन्स्टिट्यूशन जब भी होगा तो गुडविल का वैल्यूएशन पार्टनरशिप में कंपलसरी होता है। बिकॉज ऑफ क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होते हैं जिसके कारण किसी को गेन होता है, किसी को लॉस होता है। ठीक है, लेकिन बिफोर दिस रिकॉन्स्टिट्यूशन के पहले उनकी जो सिनेरियो होती है, उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होते हैं वो चेंज अलग रहते हैं। ठीक है, और हर पार्टनर ने अपने उन्हीं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को देखते हुए फर्म में अपनी जो सेवाएं हैं, अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो दिया है, और फ्यूचर के लिए ये रेशियो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो मे भी कि किसी पार्टनर को उसका फायदा मिले और किसी को उसका नुकसान हो, तो इस एडजस्टमेंट के लिए वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जरूरी हो जाता है ताकि वो फायदा और नुकसान जो होने वाला है उसको पहले ही बुक्स ऑफ अकाउंट में एडजस्ट कर दिया जाए और किसी को एक्सेसिव बेनिफिट या सेक्रीफाइस ना करना पड़े, लॉस ना उठाना पड़े। तो यहां पर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर या बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, व्हेनेवर
the existing partner decide to change the profit sharing ratio, the goodwill must be valued before that. Second is on admission of a partner in the firm. जब भी पार्टनर कोई नया पार्टनर फर्म में एडमिट होगा तो ऑब्वियसली ही विल गेट सर्टेन शेयर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फ्रॉम द ओल्ड पार्टनर्स. मींस ओल्ड पार्टनर्स जो है वो सेक्रीफाइस करेंगे. ठीक है. और आते ही टिल नाउ अभी तक जो फर्म प्रॉफिट कमा रही है, अगर आगे फर्म फिर भी कोई एफर्ट्स ना करे तो भी फर्म उतना प्रॉफिट तो फ्यूचर में कमाएगी जितना वो अभी तक कमा रही. तो इसका मतलब ये होगा कि जो नया पार्टनर आया है अगर वो अपने कोई एफर्ट्स ना डाले तो भी उसको उन प्रॉफिट में शेयर मिलता रहेगा जो अभी तक पुराने पार्टनर्स ने मेहनत करके अर्न करना शुरू किया है. तो ऑब्वियसली अगर पुराने पार्टनर्स उसमें सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मतलब प्रॉफिट रेशियो उनका कम हो रहा है, तो दे विल सफर. तो उससे कंपनसेशन लेने के लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है ताकि आने वाला पार्टनर पुराने पार्टनर्स को उनके सेक्रीफाइस के लिए कंपनसेट कर सके. ओके. और ऑन द रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर कोई पार्टनर फर्म से छोड़ के जा रहा है या ऊपर वाले ने उसको उठा लिया है, ठीक है, तो उसका जो शेयर था वो पुराने बचे हुए पार्टनर्स के लिए छोड़ जाता है, मतलब उनका शेयर बढ़ जाता है. तो ही और हिज रिप्रेजेंटेटिव, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं, दे मस्ट बी कंपेंसेटेड फॉर हिज एफर्ट्स for leaving the share in the firm. Then is on amalgamation of two or more firm. जब दो या दो से ज्यादा फर्म्स आपस में अमलगमेट होती हैं, बिजनेस को ज्वाइन कर लेती हैं, ठीक है, तो हर फर्म की अपनी अपनी रेपुटेशन होती है. तो पार्टनर्स जब एक नई फर्म में जुड़ेंगे तो ऑब्वियस है कि उनके रेशियो जो होंगे वो इंडिविजुअल रेशियो कम हो जाएंगे. पहले दो और दो पार्टनर थे, अब मिलके एक साथ चार हो जाएंगे. तो पहले जहां पे वो 50-50% अपनी अपनी फर्म का प्रॉफिट बांटते थे, अब टोटल फर्म के प्रॉफिट में उनको 25% शेयर मिलेगा, जबकि उनकी अपनी अपनी अलग अलग रेपुटेशन है. तो हर पार्टनर को उसकी रेपुटेशन के, उस फर्म की रेपुटेशन के अकॉर्डिंग उसको गुडविल की वैल्यू मिलनी चाहिए, इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है. उसके बाद कन्वर्जन ऑफ फर्म इनटू कंपनी. अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, मतलब सिंपल ये हो गया कि आप कंपनी को उसको सेल आउट कर रहे हैं अपने बिजनेस को. तो चूंकि कंपनी में जब आप सेल आउट करेंगे तो आपके साथ साथ और नए लोग कंपनी के मालिक बन जाएंगे. तो आपने जो अभी तक मेहनत की है उसका फायदा आपको ना मिलके बाकी लोगों को मिलेगा. इसलिए जब आप कंपनी को अपने बिजनेस को सेल आउट करेंगे या कंपनी में कन्वर्ट करेंगे तो बिफोर दैट आप कंपनी से उसका कंपनसेशन लेंगे गुडविल के रूप में जो आपने मेहनत की थी. इसलिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाना जरूरी है. उसके बाद आते हैं सेल ऑफ ए बिजनेस. अगर आप अपने बिजनेस को सेल आउट करते हैं, आपकी एक रेपुटेशन है, आपका एक नाम है, आपकी एक पॉपुलैरिटी है जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. अगर आप ये सब छोड़ के अपने बिजनेस को किसी और को हैंड ओवर कर देते हैं तो आप उससे कंपनसेशन ले सकते हैं या लेते हैं. इसके लिए गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता. ओके. नाउ आई एम कमिंग टू एक्सप्लेन यू, थ्योरेटिकली एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं कि मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कौन कौन से हो सकते हैं. तो गुडविल के वैल्यूएशन जो अकाउंटिंग में बनाए गए हैं, ठीक है, वैसे तो आप किसी भी बेसिस पर कर सकते हैं, लेकिन जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो मेथड ऑफ वैल्यूएशन जनरेट किए गए हैं या जिनको थ्रू आउट द वर्ल्ड दुनिया भर के अकाउंटेंट ने जिसको अप्रूव किया है, जिसको एक्सेप्ट किया है, उनके बारे में आपको बता रहा हूं. तो यहाँ पे गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आपके पास बेसिकली दो तरीके हैं. या तो आप जो प्रॉफिट कमा रहे हैं बिजनेस में विदाउट कंपेयरिंग विद अदर्स, आप जो भी प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके बेस पर आपकी गुडविल का वैल्यूएशन हो रहा है, या फिर आपका होता है दूसरा सुपर प्रॉफिट. सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है यू हैव टू मेक अ कंपैरिजन ऑफ योर प्रॉफिट विद अदर्स प्रॉफिट. तो एज कंपेयर टू अदर्स जो आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली तो वही गुडविल होती है. तो उस सुपर प्रॉफिट के बेस पर गुडविल का वैल्यूएशन किया जा सकता है. ठीक है. तो दो मेथड हो गई, on the basis of average profit method और on the basis of super profit method. एवरेज प्रॉफिट जो है वो आपके ही बिजनेस में आपने जो लास्ट ईयर में प्रॉफिट कमाए हैं उन्हीं के एवरेज के बेसिस पर कैलकुलेट किया जाएगा. यहां पर भी चीज वही है, लेकिन यहां पे सिंपली आपका प्रॉफिट नहीं बल्कि आपके सुपर प्रॉफिट के बेस पर किया जाएगा. ठीक है. इसमें फर्दर दो मेथड होती हैं. एक होती है परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और दूसरा होता है परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. जब आप गुडविल वैल्यूड करते हैं तो आप ये मान के चलते हैं कि आप किसी के बिजनेस को परचेज कर रहे हैं या आप किसी के प्रॉफिट्स को परचेज
कर रहे हैं, तो उन प्रॉफिट्स को परचेज करने के लिए क्या वैल्यू आपको पे करनी होगी उसके बेसिस पर ये होती है, और कितने साल के लिए उस प्रॉफिट को परचेज किया जाता है। तो यहां पर कुछ नंबर ऑफ परचेज ईयर होते हैं जिनके बेस पर गुडविल को वैल्यूड किया जाता है। वो परचेज ईयर का जो कंसेप्ट है वो ये है कि हम कितने आगे आने वाले सालों में विदाउट एफर्ट्स, मतलब कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं करने, हमें बिजनेस में कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी है, तो भी हम कितने साल तक सेम प्रॉफिट जो हमने पास्ट में अर्न किया है उसको अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ कोर्स कि जब भी आप बिजनेस में चेंज करेंगे तो आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स तो डालेंगे ही, लेकिन हम यहां पे ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि इफ देयर इज नो एक्स्ट्रा एफर्ट्स वी पुट इन द बिजनेस, देन फॉर हाउ मेनी ईयर्स द सेम प्रॉफिट कैन बी अर्न्ड, उसको हम बोलते हैं परचेज ईयर्स। ओके, तो ये दो मेथड्स यहां पर होगी, और यहां पर तीन मेथड्स हैं। एक है परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, यहां पे आप सुपर प्रॉफिट को परचेज कर रहे हैं, यहां पे आप अपने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हैं। मतलब ये कि उतना ही प्रॉफिट जो आपका सुपर प्रॉफिट है उसको अर्न करने के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट बिजनेस में करना चाहिए, और प्रैक्टिकली आपने कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। जैसे जो प्रॉफिट आप एक्स्ट्रा अर्न कर रहे हैं उसको कमाने के लिए आपको जो आपके प्रॉफिट्स हैं उसको कमाने के लिए सपोज करें कि आपको 10 लाख की कैपिटल चाहिए, बट यू हैव इन्वेस्टेड ओनली 8 लाख। इसका मतलब ये कि आप 8 लाख रुपए इन्वेस्ट करके भी 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बराबर रिटर्न अर्न कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपए जो है वो आप विदाउट इन्वेस्टमेंट सिर्फ आप अपने नाम के बेसिस पर कमा रहे हैं। दैट इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। एंड लास्ट इज एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड का कोई क्वेश्चन आपकी बुक में नहीं दे रखा है। एन्युटी मेथड सुपर प्रॉफिट से ही कैलकुलेट की जाती है, आपको मैं समझा दूंगा, लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से एन्युटी मेथड आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो मेथड्स यूज करनी है, नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3, ये प्रैक्टिकली आपसे एग्जाम में पूछी जाती है। ये वाली मेथड आई थिंक सो कि कभी नहीं पूछी गई है और ना पूछी जाएगी, और ये वाली मेथड भी कभी नहीं पूछी गई है और ना कभी पूछे जाने की संभावना लगती है। ठीक है, तो अब मैं अगली बार आपको जब भी बताऊंगा तो इसमें इनको कैसे कैलकुलेट किया जाता है प्रैक्टिकली उसके बारे में बताऊंगा, इसके फॉर्मूले लिखाऊंगा, सम्स सॉल्व करवाऊंगा, और इसके अलावा जो बाकी की चीजें थी वो मैं आपको उसकी अकाउंटिंग समझाऊंगा, जो प्रैक्टिकली इस चैप्टर में आपको कुछ काम नहीं आएगी। इसके जस्ट आगे एक चैप्टर है एडमिशन ऑफ पार्टनर, उसके बाद है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, उसमें वो सारी चीजें आपको काम में आएंगी। तो अभी मैं जो आपको बताऊंगा वो इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बल्कि आगे के चैप्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाऊंगा।